Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good evening to all of you. Dear students, I am Muhammad Abdullah Azhar. In this video, we are going to discuss funds flow analysis, BCom second year general financial statement analysis में third unit, fourth chapter 4 and third unit OU syllabus discuss करने जा रहे हैं. So what is funds flow analysis and what is funds and flow and analysis, why we prepare funds flow statement, we will discuss here. Funds means capital or working capital, and flow means movement of funds. Flow means movements. Analysis, analyzing financial position of company. In our earlier studies, we already discussed about financial position, it means balance sheet, etc. So here, in depth, we have to know and we have to analyze the financial position of the organization and company. To make financial policies, we prepare funds flow analysis, funds flow statement. Here we have to prepare funds flow statement. What do you call it? Funds flow statement. Why we prepare funds flow statement? To know the financial position of the company. In depth we have to discuss, right? So preparation of funds flow statements, we have to know that what are the statements we have to prepare. In this funds flow statement, there are three statements which we have to prepare. Number one, statement of changes in working capital. Statement of changes in working capital. And second is statement of showing funds from operations. And the last one is third, statement of sources and application. Or statement of funds flow. We can call it funds flow statement, right? So these are the three financial statements which are very, very important in this chapter. So statement of changes in working capital. Number one is statement of changes in working capital. Why we prepare this one? To know the working capital. And what is working capital? Current assets minus current liabilities. इसको बोलेंगे working capital, current assets minus current liabilities. Current assets or current liabilities, it is not new for you, right? We already discussed in company final accounts. BCom सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर कंपनी फाइनल अकाउंट्स में आप करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या है डिस्कस कर रहे थे. इसका स्टेटमेंट मेरे सामने है, आपको पहले शो कर देता हूँ मैं. यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट वुड बी इजी फॉर यू. जब आप टेक्स्ट बुक निकाल कर देखेंगे आपकी तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा. पेज नंबर D6, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, पंकज पब्लिकेशंस. D6 पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ऑफ मेसर्स XY लिमिटेड, X लिमिटेड, पर्टिकुलर्स, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर. प्रॉब्लम में आपको दो इन्फॉर्मेशन गिवन रहेंगे, प्रीवियस और करंट, और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर.
और इंक्रीज और डिक्रीज करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या है ऑलरेडी आपको मालूम है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटार्स, ये दोनों को मिला के हम अकाउंट्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर करंट असेट्स। करंट लायबिलिटीज क्या है, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटार्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन टेकन, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स का इंक्रीज होना, एन इंक्रीज इन ए करंट असेट मीन्स एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर करंट असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल भी हमारा इंक्रीज होगा। और ए डिक्रीज इन ए करंट असेट्स मीन्स डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और अगर करंट असेट्स डिक्रीज होते हैं तो वर्किंग कैपिटल हमारा डिक्रीज होता है। अगर करंट असेट्स ये दोनों को कंपेयर करेंगे, इंक्रीज हो रहा तो इंक्रीज में लिखेंगे, डिक्रीज हो रहा तो डिक्रीज में लिखेंगे। लेकिन इसका अपोजिट इफेक्ट रहेगा यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में। अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ते हैं, इंक्रीज इन ए करंट लायबिलिटी मीन्स ए डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही तो डिक्रीज में लिखेंगे, और अगर डिक्रीज हो रही तो इंक्रीज में लिखेंगे। तो ये आप थोड़ा जहन में रखिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में अभी आपको एक्सप्लेन करा, जिसमें करंट असेट्स पहले लिए, उसके बाद करंट लायबिलिटीज लिए। करंट असेट्स ये टोटल ऑफ ए करेंगे, या टोटल ऑफ ए भी असाइन कर सकते हैं आप, या फिर टोटल ऑफ करंट असेट्स। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करें तो वर्किंग कैपिटल मालूम होगा। तो जो टोटल है पहले इसको लिख देंगे, उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है आपको कैपिटल मालूम हो जाता है। ये पहला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सेकेंड स्टेटमेंट इसमें हम प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, हाउ टू प्रिपेयर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पर दो प्रोफार्मास है, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ये भी देख के समझ जा सकते हैं। कोई एक हम फॉलो करेंगे जो हम स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशंस ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका फर्स्ट आइटम है, इट इज सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जैसा बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और सोल ट्रेडरशिप में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे आप, उसमें के कुछ आइटम्स रहेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे एक्सप्लेनेशन में। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशंस ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 years का डेटा गिवन है, एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्लोजिंग रहेगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो रहेगा वो ओपनिंग रहेगा। फर्स्ट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको ले लेंगे। उसके बाद ऐड आइटम्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट रिजल्टिंग इन आउटफ्लो ऑफ फंड्स। यहां पर फंड्स में मैं आपको बोला था, फ्लो में इनफ्लो और आउटफ्लो का डिस्कशन है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो का डिस्कशन। फंड्स का बिजनेस में आना और फंड्स का बिजनेस से जाना, उसका डिस्कशन है और क्या इफेक्ट होगा इसमें। तो यहां जो है आइटम्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट रिजल्टिंग इन आउटफ्लो ऑफ फंड्स, जो इफेक्ट नहीं करने वाला है, यानी कि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलेंगे। व्हाट वी कॉल इट, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है, फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ है। फिक्टिशियस एसेट्स आपको मालूम है जिसकी वैल्यू, जो लॉसेस रहते असेट्स के पास, लॉसेस बढ़ते रहते फिक्टिशियस एसेट्स की शक्ल में। एंड इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट्स जैसा है, वो इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू का डिफरेंस अमाउंट यहाँ पर आपको लिखना है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस की जो कंपनी बैलेंस शीट में आप अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में जो आइटम्स लेते थे वो यहाँ पर लिखेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे। डिविडेंड्स पेड एंड प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एनी अदर आइटम ऑफ सिमिलर नेचर, इन सब को ऐड करेंगे ये क्लोजिंग बैलेंस में। ऐड करने के बाद फिर लेस क्या करना है अब आपको, आइटम्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट रिजल्टिंग इन इनफ्लो ऑफ फंड्स। कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है फंड्स पे, उसका इनफ्लो कुछ होने वाला नहीं है जिससे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, अप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसका अपोजिट, वहां पर डिप्रिसिएशन थे तो यहां पर अप्रिसिएशन है। ऐसे आइटम्स आपको रिकॉर्ड करना है। वहां पर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स थे, यहां पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, ये लेस करेंगे। पॉजिटिव फिगर आया तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन से, नेगेटिव फिगर आया तो फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन से। उससे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, ओपनिंग बैलेंस को माइनस करेंगे। उसके बाद जो भी फिगर आया, अगर वो पॉजिटिव है तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, अगर नेगेटिव है तो फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन बनेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है लास्ट
जो स्टेटमेंट हमको डिस्कस करना है, स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्लो, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट कैसा प्रिपेयर करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स फॉर द ईयर एंडेड, वट एवर द ईयर। स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन में इफ द इनफ्लोस, यानी इफ कैश इज कमिंग इन और फंड्स आर कमिंग इन, बिजनेस में कुछ इनफ्लोस हो रहे हैं तो आप सोर्सेस साइड रिकॉर्ड करेंगे, सोर्सेस एंड एप्लीकेशन। इनफ्लोस हैं तो सोर्सेस साइड, आउटफ्लोस है तो एप्लीकेशन साइड, राइट। इश्यूज ऑफ शेयर कैपिटल, एक चीज का एक्सप्लेनेशन यहां पर मैं करूंगा कि इश्यूज ऑफ शेयर कैपिटल इशूड समझना है आपको। प्रीवियस अमाउंट 40,000 बिगिनिंग ईयर है, 50,000 एट द एंड ईयर, तो अमाउंट्स को कंपैरिजन करना है आपको कि प्रीवियस में 40,000 था और कैपिटल, शेयर कैपिटल 50,000 है अगर, तो ये 50,000 अमाउंट को आप यहां से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने से फंड्स आएंगे आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि इशू ऑफ शेयर है, शेयर्स आप इशू कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको 10,000 रुपीज आए हैं, तो ये सोर्स बना आपका, तो आप सोर्सेस साइड उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर इसी तरीके से इशू ऑफ डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स रेज्ड है, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कोई असेट्स को आप सेल भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है या सेल से फिक्स असेट्स को सेल कर रहे हैं, ये सब सोर्सेस है जिससे इनफ्लो, फंड्स का इनफ्लो हो रहा। और फंड्स का आउटफ्लो कब होगा? जब बिजनेस से वो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अमाउंट था 1 लाख रुपीज एट द बिगिनिंग, अब 80,000 हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो 20,000 रुपीज का जो डिफरेंस अमाउंट है, कम होने से क्या हुआ? अगर ये बढ़ता तो इशू बोल के सोर्स बनता था, कम होने से क्या हो गया? ये 20,000 रुपीज एप्लीकेशन है, यानी कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा उनका वापिस कर रहे हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। Like this, redemption of debentures, repayment of long-term loans, purchase of fixed assets, purchase of long-term investments, ये तमाम चीजें यहाँ पर आपको, these all the things we have to record, sources and applications. If sources, if flow funds are inflows, अगर इनफ्लो हो रहे हैं तो आप सोर्सेस साइड लिखेंगे, अगर आउटफ्लो हो रहा तो एप्लीकेशन साइड लिखेंगे। एक और बात, जो रिजल्ट वहां का आया था, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जो आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में एक रिजल्ट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अगर आया तो वो एप्लीकेशन रहेगा, अगर वो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रहेगा तो वो सोर्स बनेगा। वन मोर थिंग, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस जो रिजल्ट आया था हमारा, स्टेटमेंट शोइंग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन से, आप उसको सोर्सेस साइड लिखेंगे। फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस अगर है, नेगेटिव फिगर अगर आता है उसमें, तो एप्लीकेशन साइड लिखेंगे। इज दैट ओके? सो दिस इज द स्मॉल एंड small explanation, small introduction of this funds flow analysis topic, unit 3rd in unit 4th, chapter 4 in BCom second year 4th semester. So next videos में students हम next video में इसके problems को solve करेंगे, how to solve these problems। उससे पहले आपको introduction होना जरूरी था। So you should by heart these statements. You can follow the page number for statement of changes in working capital is page number D6, D8 for statement showing funds from operations, and for statement showing sources and applications page number D5. Please follow these page numbers and by heart it. We will discuss we will solve the problems in next video. Thank you so much.